Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in course Compiler Construction. Today the lecture number 9 and the topic is lexical analysis. We have divided the lexical analysis chapter into different parts, and today we will discuss the part number 1 of lexical analysis. Basically the complete compilation process is divided into 6 different phases. And the lexical analysis is the first phase among all such six phases. So the main topics that will be under discussion here are the lexical analyzer as a separate phase. We will discuss what is the reason that lexical analyzer is separated from the parsing, is separated from the other steps of the compilation process. So we will also discuss what is the interaction of lexical analyzer with second phase, and actually that is the parser. Further we will discuss what are the errors that occur in the lexical phase. So we call them as the lexical errors. In depth all type of errors will be discussed in chapter number 4. Further there are lot of different terminologies that are related to lexical analysis process, and these are tokens, lexemes, patterns, and further we will discuss attributes of tokens and especially specification of tokens for patterns. So by using the different type of definition that you are seeing here, like terminology, string and language operations, regular expression, regular definition, notational shorthands, we will use them to implement the transition diagrams. ये सारा हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हम इस पार्ट 1 के अंदर, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्सिकल एनालिसिस का, हम इन तमाम चीज़ों का आइडिया लेंगे, हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम इन तमाम चीज़ों को जो है इन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोग्राम और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम उसके लेक्सीम और टोकन फाइंड करके हम उसके ऊपर जो है फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. तो इसमें जो है आज जो डिस्कस होना है, या इस कंप्लीट चैप्टर में हमने जो डिस्कशन करनी है, वो एक्चुअल में मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं. सो लेक्सिकल एनालिसिस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम इसका डिस्कस करेंगे. जिस तरह हमने बात की है कि ये किस तरह से लेक्सिकल एनालिसिस को डिफाइन किया जाता है, लेक्सिकल एनालिसिस एक सेपरेट फेज क्यों है कंपाइलेशन के प्रोसेस में, और फर्दर इसका रिलेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के साथ या सिंबल टेबल के साथ जो है वो कैसे है. सो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं थ्रू आउट इस चैप्टर में आने वाले जो इसके पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, उसमें डिस्कस होंगे. उनमें इम्प्लीमेंटिंग ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं. बाय यूजिंग कोड हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. हम उसमें सैम्पल सूडो कोड लेंगे और उसके ऊपर हम इसका आइडिया कंप्लीट रीड करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्कीम्स जो हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन डायग्राम्स जो हैं, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वाया यूजिंग द कोड. Design of a lexical analyzer. Basically the process of lexical analyzer is basically the process or the implementation of first step of compilation is the lexical analyzer, and basically we receive as input the regular expression and we transform that regular expression into the DFA via using the concept of NFA. So first of all we have the regular expression and we will convert it into the non-deterministic finite automata. After that non-deterministic finite automata will be converted into the DFA, the deterministic version, the deterministic finite automata. तो इस तरह से एक लेक्सिकल एनालाइजर जो है, आप उसको फर्स्ट फेज का टूल समझ लें, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म कह लें, क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस की जो फॉर्म है, जो एक्चुअल फॉर्म है, रनिंग फॉर्म है, इम्प्लीमेंटेड वो लेक्सिकल एनालाइजर है. सो रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए और एनएफए से डीएफए जो है, ये बेसिकली इस पैटर्न के ऊपर जो है वो हम लेक्सिकल एनालाइजर को डिज़ाइन करते हैं. तो सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम जो कि यूज़ होता है कन्वर्जन के लिए, कि हम किस तरह से एनएफए डीएफए की कन्वर्जन कर सकते हैं. एंड बेसिकली दिस इज़ ए टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. वहाँ पे भी आप लोगों ने इसको देखा होगा कि किस तरह से ये कन्वर्जन पॉसिबल है और आप एक गिवन एनएफए को डीएफए के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्दर वी विल एक्सप्लोर द मिनिमाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अ डीएफए, कि
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो रेगुलर एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए पार्टिकुलर लैंग्वेज जो आपको मिली थी, आपने उसको NFA में कन्वर्ट किया, और उस NFA को जब DFA में कन्वर्ट किया, सपोज यूर रिजल्टेंट DFA कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल। तो अब 7 स्टेट्स की क्या मिनिमाइजेशन हो सकती है कि अगर हम वही प्रोसेस, वही लैंग्वेज, वही सारी स्ट्रिंग्स जो 7 स्टेट्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, हम उनको 6 के ऊपर या 5 स्टेट्स के ऊपर ही उसका अल्टरनेट जो है वो डायग्राम बना सकें, उसका DFA बना सकें। सो बेसिकली दिस इज द पॉसिबल केस। तो समहाउ मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर ये पॉसिबल हो सकेगा। उसके लिए हम एक जो प्रोसेस है मिनिमाइजेशन का, नंबर ऑफ स्टेट्स की मिनिमाइजेशन DFA की जो हम करेंगे, तो उसको भी हमने डिस्कस करना है थ्रू आउट इस आने वाले सबसिक्वेंट पार्ट्स के अंदर इस लेक्सिकल एनालिसिस के। फर्दर कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू DFA डायरेक्टली, हमने यहाँ पे बात की है कि एक्चुअल प्रोसेस जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर डिजाइन करने का वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट होती है NFA के अंदर, और फिर NFA जो है वो कन्वर्ट होता है DFA के अंदर। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली जो है वो DFA के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। टू डू दैट टास्क वी विल यूज सम टाइप ऑफ एल्गोरिथम एंड द ट्री नोटेशंस, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ओवरव्यू है इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली वो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, और फिर फर्दर इनके सब टॉपिक्स भी हैं जो हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। So first of all, now we will discuss what is lexical analysis, and basically simply what is the reason why lexical analysis is a separate phase. हम इसको कंपाइलेशन से, कंपाइलेशन का जो 6 स्टेप्स हैं उनमें ये एक सेपरेट स्टेप है, और सारे सेपरेट हैं। लेक्सिकल एनालिसिस की क्या रीज़न है कि हमने इसको कंबाइन नहीं किया पार्सिंग के साथ, अदर किसी फेज के साथ, हम इसको क्यों सेपरेट रख रहे हैं? सो बिहाइंड द सीन वी हैव 3 डिफरेंट मेन पॉइंट्स, सो फॉर विच वी कैन से that lexical analysis basically is a separate phase due to that 3 phases. So number 1, it simplify the design of the compiler. No doubt about that. अगर आप तमाम फेजेस को एज अ सेपरेट फेज कंसिडर करें और उसमें आपका जो कंपाइलर की डिजाइनिंग है वो मोर एफिशिएंट भी हो जाती है और उसमें सिंप्लीफाई भी हो जाती है। अब इसमें जिस तरह हम एक कंसेप्ट लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर कि आपके पास एक बिग साइज प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसकी बेहतर आइडिया, उसकी बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप अपने लार्ज जो मतलब प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करते हैं, मीन जिस तरह डिवाइड एंड कनकर रूल है कि आप उसको डिवाइड करने के बाद जो है उसको सॉल्व करते हैं और बाद में जो उसके इंडिविजुअल रिजल्ट्स आते हैं उसको कंबाइन करके फाइनल एक रिजल्ट उसका कंक्लूड कर लेते हैं। So in this way, the design of the compiler, the implementation of the compiler becomes simpler rather than if we use the lexical analysis as a mixed step of parsing or as a mixed step of other phases of the compiler. Okay, so LL1, first L representing left to right scan, second L representing with leftmost derivation. So overall we can say left to right scan with leftmost derivation, और 1 ब्रैकेट में आपको जो नजर आ रहा है इट मीन 1 लुक अहेड ऑपरेटर। अब एट द मोमेंट ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल है कि व्हाट इज दिस वन, LL1 के ऊपर बात नहीं हुई, ये 1 क्या है और ये किस टाइप की, ये हमारे पास LL1 मीन ग्रामर है, कंसेप्ट है, प्रोसेस है, क्या है ये। सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 4। सो बेसिकली LL1 और LR1, लेफ्ट टू राइट स्कैन विद लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड विद 1 लुक अहेड ऑपरेटर, या फिर
लेफ्ट टू राइट स्कैन विद राइट मोस्ट डेरिवेशन विद वन लुक अहेड ऑपरेटर, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, विद वन लुक अहेड would not be possible. So basically these concepts are directly related to the process of parsing, and parsing is the second phase of the compilation process. तो अब हम इसको इसलिए भी सेपरेट नहीं कर रहे क्योंकि ये बिगर टास्क हैं, ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं कि ग्रामर्स लेंगे और ग्रामर्स के अगेंस्ट जो है फिर अपने वेरीफाई करेंगे अपनी जनरेटेड स्ट्रिंग्स जो होंगी, तो ये तो बड़ी मतलब एक स्टेप्स हैं कि जिनके थ्रू हम ये काम कर पाएंगे. सो सिंपली वी हैव टू डिजाइन द कंपाइलर इन एन इजियर वे, सो दैट्स द रीजन वी हैव टू डिवाइड इट फ्रॉम अदर फेजेस ऑफ द कंपाइलेशन. सो number 2 point, for example, a parser that had to deal with comments and white space as syntactic units would be considerably more complex than one that can assume comments and white spaces have already been removed by the lexical analyzer. It's very simple. यानी अब 2 different scenarios के अंदर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें. नंबर 1, first step is the lexical analyzer and the second step is parser. You know it very well. Okay. एक सिचुएशन ये है कि जो लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर जो है ये क्या करता है कि ये कमेंट्स जो हैं और उसके साथ जो वाइट स्पेसेस हैं, ये मतलब सोर्स प्रोग्राम जो लेक्सिकल एनालाइजर को मिलता है, ये उस सोर्स प्रोग्राम में कमेंट्स और वाइट स्पेसेस को प्रोसेस नहीं करता और एज इट इज ही वाइट स्पेस और कमेंट्स को उठा के पार्सर को दे देता है. यानी कि ना सिर्फ टोकन्स को देगा पार्सर को, बल्कि वाइट स्पेस और कमेंट्स को भी उठा के जो है वो पार्सर को दे देगा. सो दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है जब ये सोर्स कोड को लेगा तो ये वहां से वाइट स्पेस और कमेंट्स को खत्म कर देगा. I mean, कमेंट्स को इग्नोर करेगा, वाइट स्पेसेस अगर मोर देन 1 वाइट स्पेसेस है जिस तरह, तो उसको रिड्यूस करेगा 1 वाइट स्पेस के ऊपर और ये प्री प्रोसेस करने के बाद जो है ये पार्सर को आगे असाइन कर देगा. सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ प्रोसेसिंग. So basically the second way of processing is more suitable as compared to the first one, क्योंकि उसमें पार्सर के लिए काम बढ़ गया है कि आप कमेंट्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, आप वाइट स्पेसेस को भी इग्नोर कर रहे हैं और वैसे उठा के पार्सर को दे रहे हैं. सो इन दैट केस पार्सर वुड फील more harder, more tougher as compared to that if the lexical analyzer removes the white spaces and ignores the comments, and after that it produces the neat and clean code to the second phase that is known as the parser. ओके, अगेन इसको रीड कर लेते हैं, बात आपको अगेन क्लियर हो जाएगी. अ पार्सर दैट हैड टू डील विद कमेंट्स एंड वाइट स्पेस as syntactic units would be considerably more complex than one that can assume comments and white space have already been removed by the lexical analyzer. So simple. So first point जो हमने रीड किया, जो फर्स्ट पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया वो बेसिकली क्या है कि इसको सेपरेट करने से हमारे पास कंपाइलर की डिजाइनिंग जो है वो सिंपल हो जाती है. ओके, नंबर 2, इट प्रोवाइड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन. नो डाउट अबाउट दैट. अगर आपने चंक्स में डिवाइड कर लिया अपने किसी लार्ज प्रॉब्लम को तो कंफर्म है कि आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इजी वे के अंदर जो है वो आप उसमें कर सकते हैं. सो सिस्टमैटिक टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट लेक्सिकल एनालाइजर्स बाय हैंड आर ऑटोमेटिकली. तो हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मीन बाय हैंड भी, यानी कि हम इसको ऑन पेपर भी इसको देखते हैं कि किस तरह से ये हम प्रोसेस कर सकते हैं. हम लेक्सिकल एनालाइजर को लेक्सीम्स फाइंड करके उसको टोकनाइज कर सकते हैं, या फिर हम मशीन के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि हम कोड राइट करें, कि हम उसको सोर्स कोड दें और वो प्रोसेस करके हमें उसके टोकन जो है वो जनरेट करके दे दे बाय इग्नोरिंग द वाइट स्पेसेस एंड द कमेंट्स. सो इट मीन the implementation of a compiler will be more suitable, will be more efficient if we separate the lexical analyzer phase from other phases. Stream buffering methods to scan input, कि जिस तरह के आप स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी स्कैनिंग जो है वो आपके लिए बड़ी इजी हो जाती है कि और आप जो है वो उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Improves
portability, this is the third point. Non-standard symbols and alternate character encodings can be more easily translated. इस तरह से आपके पास क्या हो सकता है कि easily portable है आपका कोड, कि आप उसको कहीं भी एज अ सिंपल सिंगल फेज के तौर पे भी उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर को एज अ सेपरेट फेज जो है यूटिलाइज करना हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी है, हमारे लिए मोर एफिशिएंट भी है, और ये हर पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो हमें सूट करता है कि हम लेक्सिकल एनालाइजर को एज अ सेपरेट फेज जो है वो यूज करें, उसको सेपरेट फेज जो है वो कंसिडर करें। This is an example just to understand the concept of white spaces and the comments. अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें आप देख सकते हैं there is nothing in this program except that it generates or it gives you only one line of display, that is simply a message. ओके हमने क्या किया है, हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट स्टेटमेंट है सी आउट ऑफ दैट के साथ टाइम हैज नो हॉलीडे। ओके आफ्टर दैट हमने लाइन चेंज की है और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कमेंट राइट किया जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ मैसेज। ओके अब इसमें आप देखें जो पॉइंट किया गया चीजों को यहाँ पे इंट और मेन, नॉर्मली इंट और मेन के दरमियान वी हैव ओनली जस्ट अ सिंगल वाइट स्पेस। ओके एज यू नो इट वेरी वेल कि हम नॉर्मली एक ही वाइट स्पेस देते हैं इस डेटा टाइप, रिटर्न टाइप और इसमें मेथड के नेम के दरमियान, लेकिन यहां पे आपको मोर देन वन स्पेसेस यहां पे नजर आ रही हैं। ओके द अदर वन जो इसके पैरेंथेसिस है हमारे पास मेन की, उसमें आप देख सकते हैं उसमें अगेन हमने जो है वो मोर देन वन वाइट स्पेसेस जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज की हैं। ओके सो हमने यही बात की है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है और बाकी प्रोसेसिंग जो है टोकनाइज जो है वो करके हमें प्रोसेस दे देता है। सेकंड थिंग जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो एक यहाँ पे मैसेज है जो कि एज अ कमेंट हमने मैसेज यूज किया है एंड दिस इज इग्नोरेबल बाय द कंपाइलर और इसमें हमने लिखा दिस इज अ मैसेज। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय नेचर वो तमाम 6 फेजेस जो कंपाइलेशन के अंदर आते हैं वो गो थ्रू होने के बाद आपको एक मैसेज मिलता है टाइम हैज नो हॉलीडे। लेकिन फिल वक्त हम वो तमाम 6 फेजेस की डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि हम जस्ट ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइट स्पेस और कमेंट्स जो हैं क्या ये प्रोसेस होते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वाइट स्पेसेस है मोर देन वन वाइट स्पेसेस हैं इसको रिड्यूस कर देगा वन वाइट स्पेस तक। सो जो कि एक स्टैंडर्ड है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है उनमें किसी भी दो वर्ड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो वन वाइट स्पेस का है, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो इसने एक इसको रिड्यूस करके वन वाइट स्पेस किया और इसी तरह मेन के अंदर भी जो मोर देन वन वाइट स्पेसेस थे उसको भी रिड्यूस किया वन पे, और उसके बाद जो सी आउट था उसमें मैसेज हमें डिस्प्ले किया टाइम हैज नो हॉलीडे, और जो उसमें कमेंट्स के अंदर हमें एक मिल रहा था मैसेज मिल रहा था उसको यहाँ पे इसने इग्नोर कर दिया। सो इट्स वेरी सिंपल कि बेसिकली है तो ये कंपाइलेशन के कंप्लीट तमाम फेजेस, लेकिन हमने यहाँ पे आइडिया देखा कि किस तरह से कमेंट्स इग्नोर होते हैं और किस तरह से वाइट स्पेसेस जो है उनको रिड्यूस किया जाता है। हम इसको इन डिटेल फर्दर डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। ओके सो दिस इज ए पॉइंट कि हम जो लेक्सिकल एनालाइजर है इसको फर्दर 2 प्रोसेसेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली वी हैव 6 डिफरेंट फेजेस और लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सिकल एनालिसिस द फर्स्ट एंड द लेक्सिकल एनालाइजर जब हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर को फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट स्टेप इज स्कैनिंग एंड द सेकंड वन इज द लेक्सिकल एनालिसिस। एंड स्कैनिंग क्या करेगा, वो कमेंट्स को इग्नोर करेगा, वाइट स्पेसेस जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है उनको रिड्यूस करेगा। सो स्कैनिंग consists of the simple processes that do not require tokenization of the input। कि यहाँ पे कोई प्रोसेस टोकनाइजेशन का नहीं करता स्कैनिंग के अंदर, बल्कि क्या करता है such as deletion of comments and compaction of consecutive white space characters into one।
कि जो कमेंट्स हैं उनको डिलीट करेगा, इग्नोर करेगा, एंड कॉम्पैक्शन मीन मिलाएगा, कॉम्पैक्शन ऑफ कंसेक्टिव वाइट स्पेस कैरेक्टर्स इनटू वन, और जो मुख्तलिफ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं मीन 3-4 एक जगह आपने दिए हैं तो उनको लीगल वन के ऊपर जो है वो रिड्यूस कर देगा। उसके बाद इसने क्या करना है, फिर लेक्सिकल एनालिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना है, एंड इट इज द मोर कॉम्प्लेक्स पोर्शन वेयर द स्कैनर mean the lexical analyzer produces the sequence of tokens as output। तो यहाँ से फिर वो जो प्रोसेस है जो हम एज अ सुपरफिशियल वे हम बात करते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस का जो मेन एजेंडा है, मेन जो कंसर्न है वो ये है कि सोर्स कोड को लेगा और उसको टोकनाइज करके ये नेक्स्ट स्टेप को यानी कि पार्सर को प्रोवाइड कर देगा। सो सिंपली हमने इसमें ये बात की है कि स्कैनिंग करेगा, पहले व्हाइट स्पेसेस कमेंट्स के ऊपर डील करेगा, और उनको प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करेगा, ये टोकनाइज करेगा। ओके, वी कंसीडर इट विद एन एग्जांपल। हम इसको फर्दर जो है वो इन डेप्थ में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यू हैव वन example, one program, and in it we have the main function, और उसमें आप देख सकते हैं there is nothing, just we have declared 3 different variables as identifiers, so of type integer, a, b and sum, and we have given a message that please enter any 2 integers, and we have read a and b. After that we have sum of these 2 integers a and b into sum, and after that the result value of some variable is displayed. Okay, so this is the complete procedure. 2 numbers get कर रहे हैं from user से, sum up कर रहे हैं, और उसका result जो है वो हम उसको display कर रहे हैं। There is nothing more or less from that. अब इसमें देखें आप कि इस प्रोग्राम की जो सोर्स कोड मैंने लिखा है उस पर आप गौर करें। इंट मेन और मेन में ये जो पैरेंथेसिस है इनमें गैप आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, जो कि मोर देन 1 कैरेक्टर्स हैं, ये गैप है इसका। नंबर 2 कि आप सी आउट के बाद जो मैसेज दिया है उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप है, और फिर आपने इंजर्शन ऑपरेटर के बाद आपने मैसेज दिया है प्लीज़ एंटर एनी 2 इंटीजर्स, और ये यहाँ पे भी विद इन मैसेज जो है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सी इन में आप देखें वी हैव यूज्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जस्ट टू रीड 2 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड ए, और उसके बाद के बाद अगेन वी हैव कैप, और उसके बाद फिर आप बी को रीड कर रहे हैं। ओके, सम के अंदर भी आप देख सकते हैं सम के बाद गैप है, फिर इक्वल आपने ऑपरेटर यूज किया है, फिर ए प्लस बी को यूज कर रहे हैं, और उसके बाद सी आउट के अंदर आप अपना मैसेज जो है वो उसको रिजल्ट जो है वो उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, हमने अभी ये बात की है कि लेक्सिकल एनालाइजर 2 प्रोसेस करता है, वो अपने टोकनाइजेशन के प्रोसेस को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन इज द स्कैनिंग एंड सेकंड वन इज द लेक्सिकल एनालिसिस। सो इन स्कैनिंग फेज ये क्या करेगा, ये जहां पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिड्यूस करेगा, उनको इग्नोर करेगा, उनको 1 तक लेके आएगा, जहां पे 1 मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाइट स्पेस की, वहां पे लेके आएगा, और इसी तरह जो इसके कमेंट्स हैं ये उनको इग्नोर करेगा। सो वी हैव लेबल्ड ऑल ऑफ सच टाइप ऑफ वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स इन द गिवन प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट स्पेसेस थी, तो ये स्कैनिंग प्रोसेस जो है इसको रिड्यूस करेगा 1 तक। यहाँ पे जो गैप है ये इसको रिड्यूस करेगा, सीन में गैप आपको नजर आ रहा है वैल्यू रीडिंग करने के अंदर, इसको रिड्यूस करेगा, सम के बाद गैप है इसको रिड्यूस करेगा। अब इसमें सी आउट के अंदर जो आपने स्ट्रिंग लिटरल दिया है, अब स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग दिया, उसमें भी गैप नजर आ रहा है, बट ये आपको जहन में रहे कि जो स्ट्रिंग लिटरल के अंदर स्पेसेस हैं ये स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो उसके ऊपर अप्लाइड नहीं है, बल्कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज आप देंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। सो इट मीन कि अगर ये काफी ज्यादा गैप है तो ये काफी ज्यादा गैप जो है ये उसी को एक्सेप्ट करेगा। जिस तरह आप मैसेज में यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज एंटर, फिर स्पेस है काफी, फिर हम लिख रहे हैं एनी 2 इंटीजर्स, सो इट मीन इट डिस्प्लेस दैट स्पेसेस, इट शोज दैट स्पेसेस। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कमेंट है, ये इसको भी इग्नोर करेगा, ये कहीं भी आपको रिजल्ट में नजर नहीं आ रहा। सो व्हेन वी हैव रन दिस प्रोग्राम
it has demanded just to enter any two integers. We have supplied two different integers, one is 61, the other one is 33, and after that it has sum up that those two numbers and then generates the result as a sum variable. So यहाँ भी हम देख सकते हैं sum of two integers is equal to 94. So I think यहाँ पे जो प्रोसेस आपको इस फिगर के अंदर नजर आ रहा है वो बेसिकली मैंने जो बताई है बात वो आपको स्कैनिंग की बताई है. आफ्टर दैट जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज है उसमें ये क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा, लेक्सीम कंसीडर करेगा और उसको किसी कैटेगरी में डाल देगा, यानी किसी टोकन की कैटेगरी में डाल देगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक्सिकल एनालिसिस से रिलेटेड है. हमने इसमें जो कंसीडर किया है वो सिर्फ मेन जो मेथड है इसके अंदर हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस का कोड हमने लिखा है हमने जस्ट उसको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज इंट एंड वी हैव रिटन हियर इट, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इंट है, ये लेक्सीम है और इसका टोकन क्या है, मीन किस कैटेगरी का लेक्सीम है, हम कहेंगे ये एक कीवर्ड है. ओके, int इज अ कीवर्ड इन C++. और इसी तरह हमारे पास जो a उसके बाद a है, a को हमने यहाँ पे राइट अप किया है. दिस इज अगेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड बेसिकली दिस इज एन आइडेंटिफायर. ओके, a के बाद आपको कॉमा नजर आ रहा है. कॉमा बेसिकली क्या है, ये एक पंक्चुएशन है. ओके, उसके बाद b है. b हमारे पास क्या है, अगेन एक आइडेंटिफायर है. उसके बाद क्या है हमारे पास, अगेन कॉमा है. Comma again we have as known it as the punctuation. After that we have the sum. Sum is an identifier. उसके बाद semicolon है. Semicolon is again a punctuation. Okay. After that the first line have been completed. We go to the second line, that is cout. So cout basically is considered as an identifier by the lexical analyzer. उसके बाद ये जो डबल आपको इंसर्शन दो ऑपरेटर लेस देन के नजर आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में जब आप इसको यूज करेंगे तो ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर वन टाइम लिखें तो रिलेशनल ऑपरेटर है, अगर कंसेक्टिव टू टाइम लिखेंगे तो फिर हम इसको एज अ ऑपरेटर यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर के तौर पे यूज करेंगे. Okay, after that we have a message of please enter any two integers. So this is a message in double quotation. Basically this is a string literal. After that we have reading cin. Cin is again an identifier और identifier और उसके बाद फिर extraction operator है. ये greater than के टू साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. This is again an operator and after that we have a mean identifier. Again extraction operator. Okay, this is an operator. After that there is b simply is an identifier. After that there is a semicolon and semicolon we have already discussed that this is a punctuation. Okay, so sum is an identifier. After that there is equal is an operator. So a plus b, a is an identifier, plus is an operator, b is an identifier and semicolon is a punctuation. So cout जिस तरह हमने पहले भी बात की है, ये भी हमारे पास cout identifier है, इंसर्शन ऑपरेटर है, सम ऑफ टू इंटीजर अगेन स्ट्रिंग लिटरल है और इसी तरह ऑपरेटर सम जो है जिसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर है, फिर सेमीकोलन है, दैट इज द पंक्चुएशन. Return, that is again a keyword, and 0, that is a numeric value, we can consider this as a constant, and after that at the end there is a semicolon and semicolon is a punctuation. अब हमारे पास sequence of characters as a lexeme जो प्रोग्राम में यूज होते हैं वो बेसिकली किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यानी इनमें कोई कीवर्ड होगा, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट एक कीवर्ड था और इसी तरह हमारे पास जो है वो रिटर्न कीवर्ड है. इनमें कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं मीन ऑफ टाइप वेरिएबल, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं ए है, बी है या इसी तरह सी आउट है या मुख्तलिफ और हैं. ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स भी आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स में जिस तरह ये प्लस का साइन आपको मिल रहा है, इक्वल साइन असाइनमेंट का मिल रहा है, तो ये ऑपरेटर्स हैं. और इसी तरह हमारे पास पंक्चुएशंस हैं जिसमें कॉमा, सेमीकोलन और ये हमारे पास जो है वो पैरेंथेसिस की ओपनिंग क्लोजिंग वो शामिल हैं. तो ये बेसिकली वी हैव ओवरऑल 5 to 6 categories of tokens normally, and the sequence of characters that we read in our program is basically is
have some type of category of token. तो हम जब भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पे रीड करते हैं, वी हैव टू कंसीडर दैट सच टाइप ऑफ लेक्सीम इज बेसिकली रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ टोकन. वो टोकन कौन कौन से हैं उनको हमने लेबल भी कर दिया है और उसको हमने कलर भी कर दिया ताकि ये अंडरस्टैंड हो सके. इसमें देख सकते हैं आप कीवर्ड्स भी हैं, इसमें आइडेंटिफायर्स भी हैं, इसमें पंक्चुएशंस भी हैं, इसमें स्ट्रिंग लिटरल्स भी हैं, इसमें आपको कांस्टेंट भी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ऑपरेटर भी नजर आ रहे हैं. सो वी हैव इन जनरल 5 to 6 कैटेगरीज ऑफ टोकन्स. सो मेरा ख्याल है कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी अब इन डेप्थ के किस तरह से जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो स्कैनिंग करता है और स्कैनिंग करने के बाद जो है वो अपना लेक्सिकल एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है. सो आई थिंक सो दैट ऑल द थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड नाउ. ओके, अब हम आगे चलते हैं. So this is the interaction of the lexical analyzer with the parser. So how the first phase is related or deal with the second phase of the compilation. So by nature the lexical analyzer receives as an input the source program, and if it has some type of errors it generates those type of errors. After that, after the corrective actions that we have made on the given input, we can produce some type of tokens from here. So token generate होंगे lexical analyzer में और सारी बात है टोकन के साथ टोकन वैल्यू भी होगी जो कि पार्सर को मिलेगी. पार्सर उसको प्रोसेस करेगा, उसको नेक्स्ट टोकन की रिक्वायरमेंट होगी, अगेन रिक्वेस्ट करेगा लेक्सिकल एनालाइजर को और फिर वो अगेन टोकन प्रोड्यूस करेगा और पार्सर को प्रोवाइड करेगा. आई थिंक हमने जो अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में स्टडी किया था कंपाइलेशन प्रोसेस को, डिज़ाइन को, उसमें इन डेप्थ हमने ये चीज़ें देखी थी कि किस तरह से जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो पार्सर के साथ जो है वो डील करता है. जस्ट दिस इज अगेन जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ द लेक्सिकल एनालाइजर इज कनेक्टेड टू द पार्सर और इट कैन इंटरेक्ट विद द सिंबल टेबल. सो सिंबल टेबल बेसिकली जो है वो तो तमाम 6 फेजेस कंपाइलेशन को जो है वो इनके साथ डील करता है और उनके साथ जो है वो प्रोसेस करता है. ओके, तो लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स प्रोवाइड करेगा पार्सर को, पार्सर उनको प्रोसेस करेगा, पार्सर को फर्दर टोकन की जरूरत होगी या रिक्वेस्ट करेगा लेक्सिकल एनालाइजर को, एंड लेक्सिकल एनालाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ टोकन एज वेल. पार्सर को देगा और ये प्रोसेस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड करता चला जाएगा. Here is an example. So this is attributes of tokens. Simply we have only a one single statement or expression here, that is y is equal to 31 plus 28 multiplied by x. For example, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है, ये हमारी सोर्स इनपुट है जो हम प्रोवाइड करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर को. आफ्टर दैट लेक्सिकल एनालाइजर का रोल हमने अभी देखा है कि वो स्कैनिंग करता है और उसके बाद जो है वो टोकन प्रोड्यूस करता है. अब इसमें स्कैनिंग का तो प्रोसेस नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम इसमें जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हम उसको टोकनाइज कर रहे हैं. अब किस वे में टोकनाइज होता है इसको देखते हैं. y is basically is an identifier. Okay, so you can see here that y is basically a value, is a sequence of characters, is a token value that is used in your program, and basically it belongs to some specified category that is known as the id. Id mean identifier. So this is a token and this is the token value, or we can say that this is the token attribute. तो अब हम इसको भी डिस्कस पहले कर चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर कि किस तरह से आप जो है इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इनको एक टोकन कंसिडर करते हैं और टोकन के अंदर नॉर्मली 2 चीजें आप सप्लाई करते हैं, वन इज टोकन एंड अदर वन इज टोकन वैल्यू. लेकिन जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं नॉर्मली उसमें हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर वाई वी हैव द इक्वल साइन. इक्वल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है असाइन, इसको हमने एज अ टोकन कंसिडर किया है, लेकिन इसमें यहाँ पे राइट साइड पे कॉमा के बाद हमने कुछ भी राइट नहीं किया. इट मीन वी हैव नॉट सप्लाइड एनी टोकन वैल्यू टू दैट टाइप ऑफ टोकन. सो इसी तरह उसके बाद 31 है. 31 इज डेफिनेटली अ नंबर, सो नम इज द कैटेगरी, नम इज द टोकन एंड 31 इज इट्स टोकन वैल्यू.
plus है, plus is an again operator and we have supplied no value here. So, after that we have 28 is again a number category. After that static is an operator. X is basically an identifier. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट हमें मिली, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स थे, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में थे. लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंपाइलेशन ने उसको रीड किया और उसको प्रोसेस करने के बाद उसको टोकनाइज कर दिया. अब वो जो टोकनाइज इसने किया है वो फर्दर आगे किसको प्रोवाइड कर रहा है, वो पार्सर को दे रहा है. एंड द रोल ऑफ पार्सर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि वो फिर आगे इनको प्रोसेस कैसे करता है. So at the moment now we are in position to connect the different type of concepts here that are known as the tokens, the patterns and the lexemes. ये बात अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि लेक्सीम्स कैसे हैं, टोकन्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं. ये बात तो डेफिनेट है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं और वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से आपको लेक्सीम मिलते हैं. और लेक्सीम अपनी नेचर के हिसाब से किसी ना किसी टोकन से बिलोंग करता है, किसी ना किसी टोकन क्लास से बिलोंग करता है. और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं ये लाजमी तौर पे किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो बेसिकली हम उनको पैटर्न कंसिडर करेंगे. सो वी हैव डिफाइंड ऑल ऑफ दीज टर्म्स हियर. व्हाट इज टोकन? A token is a classification of lexical units. कि जो हमारे पास lexical units हैं, sequence of characters हैं, हम उनको बेसिकली कैटेगराइज करते हैं, हम उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन हियर ID एंड num. ये हम पढ़ चुके हैं. ID representing identifier, num representing number. Okay. Lexemes are the specific character strings that make up our token or value. Okay, so let's say we have ABC, this is a value, we have the value 1 2 3, this is again a value, and this is clear that ABC we can say that this is of category of identifier. तो यहाँ पे ये relate हो गया. और इसी तरह 1 2 3 is also sequence of characters and basically this belongs to number category. So it means we can say 1 2 3 is a lexeme and num is its token. So ABC is a sequence of characters and this is again a lexeme and it belongs to the class of ID. ID mean identifier. तो इस तरह से simple and clear way के अंदर जो है वो चीजों को हम यहाँ पर relate कर सकते हैं. After that pattern, what is a pattern? Pattern are rules describing the set of lexemes belonging to our token. ये ऐसे रूल्स हैं जो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सेट ऑफ लेक्सीम्स जो है वो किसी टोकन से किस बेस पे जो है वो बिलोंग करते हैं. तो रीजन हम देख चुके हैं, जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेटर फॉलोड बाय लेटर एंड डिजिट्स, कि जब भी आप आइडेंटिफायर को और नॉर्मली एक लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो उसमें कंसेप्ट यही है कि फर्स्ट लेटर आपका जो है कैरेक्टर होता है ABC फॉर्म के अंदर और उसके बाद जो है वो आप लेटर्स या फिर डिजिट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन राइट कर सकते हैं. तो अब ये बेसिकली ये आइडेंटिफायर का एक पैटर्न बताया कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपको मिलेगा वो बेसिकली ID कैटेगरी से, ID के टोकन से, ID की क्लास से बिलोंग करेगा. इसी तरह नॉन एम्प्टी मीन जिसमें कुछ होगा, नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 1 5 2 9 2 9 पॉइंट समथिंग. तो इस तरह की जो भी चीजें डिजिट्स है नॉन एम्प्टी है, मीन कुछ ना कुछ है. और डिजिट्स की जो कैटेगरी है वो डायरेक्टली हम देख चुके हैं कि वो नम कैटेगरी है. सो इट मीन दिस इज ए पैटर्न एंड दिस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स which follow such type of patterns will belong to the category of type num and num is basically a token. तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे. हम इसमें प्रोसीड करते हैं, फर्दर आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इनको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, टोकन्स, पैटर्न्स और लेक्सीम्स को. ओके, सो we have three different columns here. One is token, second one is of sample lexemes and third one is of informal description of patterns. इसमें हमारे पास जो टोकन्स हैं वो तो डेफिनेट है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि जिस वे में उनको राइट किया जा सकता है, एक ही वे हो सकता है किसी भी कीवर्ड को राइट करने का. सो इट मीन
if we read if in as a sample lexeme, basically हम चेक करते हैं कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन या पैटर्न हो सकता है, तो वो सिंपल इफ ही है। तो इसका मतलब है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये एक कीवर्ड की कैटेगरी से बिलोंग करेगा जिसको हमने यहाँ पे इफ लिख दिया है। सो बेसिकली वी कैन आल्सो राइट हियर एज अ कीवर्ड। सो इसी तरह जब वाइल आप प्रोग्राम में रीड करें, ये स्मॉल w है, सो वाइल जब आप उसको रीड करें तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के तौर पे, तो ये बेसिकली ये भी अगेन एक डिस्क्रिप्शन इसकी बनती है कि ये भी एक कीवर्ड है, तो इसका पैटर्न भी यही होगा और बेसिकली इसकी जो टोकन है वो भी वही होगी। सो इट मीन इफ वी रीड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज एक्चुअली अ कीवर्ड, देन इट मीन द पैटर्न ऑफ दैट सेट ऑफ कैरेक्टर्स विल बिलोंग टू टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कीवर्ड। इसी तरह हमारे पास सैंपल लेक्सीम्स हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेस देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल। सो बेसिकली ये ऑपरेटर्स हैं और डेफिनेट है इसका यही पैटर्न है कि लेस देन इक्वल, आर नॉट इक्वल, आर ग्रेटर देन इक्वल। सो बेसिकली दीज बिलोंग्स टू द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड सिंपली वी कैन से दैट दीज बिलोंग्स टू द रिलेशन कैटेगरी, आर रिलेशन क्लास, आर रिलेशन टोकन। इसी तरह काउंट है, सन है, आई, जे, पाई, d2। सो बेसिकली वही रूल है जो पिछले पेज पे हमने देखा है, लेटर फॉलोड बाय लेटर्स एंड डिजिट्स। सो सिंपली ऑल दीज बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ कैटेगरी और दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड बेसिकली दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू द आईडी दैट इज नोन एज द आइडेंटिफायर। इसी तरह 0 है, 12 है, इंटीजर्स हैं, 3.1416 पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 है, पॉइंट और एक्सपोनेंट के अंदर वैल्यू आपको नजर आ रही है। सो इट मीन दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज। सो बेसिकली एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट इज इट्स pattern and any number that is basically a numeric constant will belong to the category of num, that is known as the number category. So I think now the idea of token lexeme and patterns will be understandable for you people. Okay, हम इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से इन C प्रोग्रामिंग और इन C लैंग्वेज वी हैव अ मैसेज ऑफ डिस्प्ले printf and within double quotation we have a message total is equal to %d\n and after that we have written here the name of identifier that is the score. Okay, अब इसमें आप देखें printf एक sequence of characters है, so this printf और score जो ये भी एक identifier है। okay, so both printf and score are lexemes and these match the pattern for token id mean identifier, तो ये हम इनको identifier consider करेंगे। okay, उसके बाद डबल कोटेशन आपको नजर आ रही है एंड सिंपली दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, और ये डबल कोटेशन में ये जो हमने लिखा है दिस इज अ लेक्सीम मैचिंग लिटरल एंड स्ट्रिंग लिटरल जो है। अब इसमें बेसिकली ये %d में भी कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया ना हो। सो %d इज बेसिकली अ फॉर्मेट स्पेसिफायर and it can take a value of type integer. So %d representing to get value that are basically of type integers. So score will provide the value of integer to this format specifier and this format specifier is responsible to display that value in double quotation mark. तो जैसे ही हम इसका मैसेज देंगे total is equal to some value, तो वो %d वैल्यू गेट करेगा इस स्कोर से और \n जो है वो escape sequence कैरेक्टर है। ओके, और ये जो व्हाइट स्पेस आपको एंड में नजर आ रही है दिस इज इग्नोरेबल, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। सो इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द फॉलोइंग क्लासेस कवर मोस्ट और ऑल ऑफ द टोकन्स। कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल लें, उसमें जो टोकन्स हैं या टोकन कैटेगरीज हैं, टोकन की क्लासेस हैं, वो 5 to 6 जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था वो हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सो 1 टोकन फॉर ईच कीवर्ड, नो डाउट जो कीवर्ड है वो टोकन कैटेगरी का है, मीन उसका टोकन भी वो कीवर्ड ही है। सो द पैटर्न फॉर अ कीवर्ड इज द सेम एज द कीवर्ड इटसेल्फ। नंबर 2 टोकन्स फॉर द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के भी टोकन बनते हैं, या तो वो ऑपरेटर सेपरेट होगा अकेला जिस तरह प्लस ऑपरेटर है, सो आइदर इंडिविजुअली आर इन क्लासेस सच एज द टोकन कंपैरिजन मेंशन्ड इन प्रीवियस पेज, या कंपेयर में आ रहे हैं जिस तरह लेस देन इक्वल था हमारे पास,
जो रिलेशन में आ रहे थे, रिलेशनल ऑपरेटर, हमने प्रीवियस पेज पे अभी यहाँ पे इनको चेक भी किया, ये आप देख सकते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल ऑपरेटर भी यूज हो सकता है ऑपरेटर कैटेगरी में, और फिर या इस तरह के रिलेशन वाले भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। वन टोकन रिप्रेजेंटिंग ऑल आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर्स जो है बेसिकली उनकी अपनी एक क्लास है, अपनी एक कैटेगरी है। वन और मोर टोकन्स रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट्स, और इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टेंट्स जो हैं, नंबर वैल्यूज जो हैं, उनकी अपनी एक कैटेगरी है। उसमें भी दो चीजें आ जाती हैं, एक नंबर्स हैं जो डायरेक्टली नंबर्स हैं, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस पेज पे देखा, इंटीजर्स हैं, या हमारे पास पॉइंट वैल्यूज हैं, या हमारे पास जो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर वैल्यूज हैं, ये सारी शामिल हैं नम के अंदर। और प्लस इसके अंदर स्ट्रिंग लिटरल्स भी शामिल हैं, जिसको हमने डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग कंसिडर की है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह टोकन की एक क्लास हो सकती है फॉर ईच पंक्चुएशन सिंबल एंड सच एज लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस, कॉमा, सेमीकोलन। ये हम प्रीवियस में इन डिटेल जो है वो हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी हियर क्लियरली कि हम इनकी बात कर चुके हैं। व्हाट आर द पंक्चुएशंस, व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, बेसिकली ऑपरेटर्स, पंक्चुएशंस, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, ये वही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो एक पार्टिकुलर टोकन है वो नॉर्मली 5 to 6 कैटेगरी का हो सकता है। ओके ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास एक, ये कुछ वैसे ही एग्जाम्पल है जिसको हम अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास लेक्सीम्स जो हैं उनको एज अ टोकन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप राइट कर सकते हैं। सो टोकन नेम्स एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज फॉर द फोरट्रॉन स्टेटमेंट इज गिवन हियर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो बेसिकली आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो सिंपली वी हैव रिटन हियर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। MC mean multiplication symbol and the 2 times star mean, and this is the exponent symbol. So MC square power are written now below as a sequence of pairs. Pairs की बात अभी हमने की थी कि जब हमने वो डिस्कस किया था कि हम किस तरह से टोकन्स को सीक्वेंस के अंदर लिख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं, जहाँ पे नंबर्स हैं, हम उनके लिए ना सिर्फ टोकन बल्कि उसकी टोकन वैल्यू भी सप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए हम नॉर्मली जस्ट 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली यही आइडिया जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से E is basically is an identifier, so this is the category of ID and this is a pointer to symbol table entry for E. तो हमने इसको भी देखा था कि जैसे ही आपका कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एक ऐसी आइडेंटिफायर कैटेगरी का आता है जो कि वेरिएबल टाइप है, तो आप इसको जो है वो सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। सो सिंपली दिस इज अ पॉइंटर टू सिंबल टेबल एंट्री फॉर E। उसके बाद इक्वल है, इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वी हैव सप्लाइड नो वैल्यू विद इट। सो सिंपली वी हैव रिटन द कैटेगरी ऑफ द टोकन बट वी हैव नॉट सप्लाइड एनी वैल्यू टू इट। तो इसी तरह ये सिंगल वैल्यू के साथ हमने इसको यहाँ पे राइट किया। After that M is an ID and this is a pointer to symbol table entry for M. After that the multiplication, okay. After that C is basically is an identifier and this is again pointer to symbol table entry for C, and these are 2 steric and 2 steric representing here the exponential operator. After that 2 is a number category and this is the integer value 2. So in certain pairs, especially operators, punctuation and keywords, there is no need for an attribute value. वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि अगर इस तरह के आप टोकन कर रहे हैं कि जो कीवर्ड्स पे बेस करते हैं या आपके पास पंक्चुएशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, तो उनको फिर आप अलहदा से टोकन वैल्यू सप्लाई करने की जरूरत पेश नहीं आती है आपको। ओके, so what are the lexical errors? Throughout the compilation process we can face many different type of errors, and also the first phase also face some type of errors that are known as the lexical errors, but mind it, we can we will discuss it in detail in chapter number 4. तो अभी हम जस्ट एक आइडिया के तौर पे देख रहे हैं कि लेक्सिकल एरर किस टाइप का हो सकता है। So it is hard for lexical analyzer to tell without the add of another components that there is a source code error. तो ये बहुत मुश्किल है कि itself lexical analyzer decide कर सके कोड में
कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो जब तक इसके पास अदर कंपोनेंट्स इसके साथ ऐड नहीं होते तो इसके लिए फार डिफिकल्ट है ये चीज़ डिस्कस करनी, अनाउंस करनी, डिस्प्ले करनी, इसको अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव a comparison in between value of a and the value of function of x. So a equal to function of x. अब outside the comparison हमने यहाँ पे जो लिखा है वो है fi. So I think आपने इसको पिक कर लिया होगा। एक्चुअल में यहाँ पे हमें if लिखना चाहिए था, मीन इफ कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए थी, और इफ कंडीशन में फिर हम ये कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमने रॉन्ग वे के अंदर इसको जो है वो यहाँ पे टाइप किया है, हमने यहाँ पे इसको लिखा है fi. सो इट मीन कि a lexical analyzer cannot tell whether fi is misspelling of the keyword if or an undeclared function identifier. तो अब जाहिर बात है लेक्सिकल एनालाइजर तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को गेट करता है, सो दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर इट दैट एक्चुअली कि इसको if लिखना चाहिए था लेकिन इसने fi यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, या फिर ये एक ऐसा आइडेंटिफायर आ गया जो ऊपर डिक्लेयर नहीं हुआ। सो इट इज फार डिफिकल्ट फॉर द लेक्सिकल एनालाइजर। इसने क्या करना है, इसको एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रीड करना है, इसको एज अ आइडेंटिफायर कंसिडर करना है और सेकंड फेज को सप्लाई कर देना है। तो पार्सर वहां पे फिर अपना रोल प्ले करेगा और इस चीज को चेक करेगा कि क्या ये एक लीगल आइडेंटिफायर है या नहीं है। सो सिंस fi इज अ वैलिड लेक्सिम फॉर द टोकन id, ये id बनता है, आइडेंटिफायर है बेसिकली अगर इसको लेक्सिकल एनालिसिस की सेंस में देखें। सो द लेक्सिकल एनालाइजर मस्ट रिटर्न द टोकन id to the parser and let some other phase of the compiler, probably the parser in this case, handles an error due to transposition of the letter. तो पार्सर फिर ये देख लेगा कि एक्चुअल में ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसपोज हो चुके हैं, आई इफ की जगह है, एफ जो है वो आई की जगह आ चुका है, तो इसलिए अगर इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये प्रोसेस भी इजीली जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और लेकिन ये लेक्सिकल एनालाइजर ये काम करने की पोजीशन में नहीं है, तो पार्सर इसको आइडेंटिफाई करेगा और इसको प्रोसेस करेगा। So there may arise a situation in which lexical analyzer is unable to proceed because none of the patterns for token matches any prefix of the remaining input. अब ये इशू है कि पॉसिबल है, जिस तरह हमने 5 to 6 कैटेगरीज की बात की है टोकन्स की, कि ये किसी भी टोकन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ये किसी भी टोकन कैटेगरी को फाइंड ही नहीं करता सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए, कि प्रोग्राम के अंदर इसने कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ा, ना वो कीवर्ड से वो फील करता है कि ये बिलोंग करते हैं, और ना ये ऑपरेटर है, ना पंक्चुएशन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वहां पे कंपाइलर जो है, लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो डिफिकल्टी फील करेगा। तो हम इस तरह की चीजें जो हैं वो चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, ऑल सच टाइप ऑफ एरर्स दैट कैन अकर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस, स्पेशली इन द लेक्सिकल एंड द पार्सिंग फेज। तो वहां पे हम उनको कंसिडर करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। Here is an example. ओवरऑल यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं कि HTML और XML जो हैं वो टैग्ड लैंग्वेजेस हैं, आप इनमें टैग का यूज करते हैं। HTML जो है उसके टैग्स डिफाइंड हैं और XML के अंदर टैग्स जो है वो आप खुद से डिफाइन करते हैं। ओके, अब हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसमें 4 लाइंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्टफ है। अब हमने करना क्या है, suggest how to divide the following HTML document, this is a document, into appropriate lexemes. इसके lexeme बना दें, which lexemes should get associated lexical values, और फिर उन lexemes की कौन कौन सी वैल्यू प्रोड्यूस होंगी and what should those values be, और वो वैल्यूज कौन सी होंगी। तो ये प्रोसेस अब हमने करना है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके कोड्स को भी अभी हमने एक्सप्लोर किया था। अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आ गया है कि अब हमारे पास जो वो टैग लैंग्वेज आ गई है और इसके ऊपर अब हमने वो लेक्सिम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वो प्रोसेस जो है वो अब अप्लाई करना है। तो ये भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो हियर इज अ फोटो ऑफ, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक मैसेज है। सो वी हैव रिटन हियर, इसकी हमने एक कैटेगरी बनाई कि जो भी टेक्स्ट आपको नजर आएगा, मैसेज टाइप नजर आएगा, हम उसको जो है वो टेक्स्ट का एक टोकन कंसिडर करेंगे। ओके, दिस इज ए टोकन
एंड हेयर इज अ फोटो ऑफ, और ये उसकी क्या है, वैल्यू है, टोकन वैल्यू। ओके, उसके बाद बी है और ये बी की क्लोजिंग है, सो दिस इज द स्टार्ट नोड एंड दिस इज द स्टार्ट टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। तो हमने यहाँ पे लिखा नोड स्टार्ट बी है, और उसके बाद उसमें टेक्स्ट जो है वो माई हाउस है। माई हाउस इज द लेक्सिकल वैल्यू एंड बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट। इसी तरह नोड एंड हो रहा है और ये आप बी को एंड कर रहे हैं। ओके, सेकंड लाइन पे आ जाएं। This is a P and P representing paragraph, and so we can say that the node start of P, और उसके बाद क्या है, इमेज है, इमेज का टैग है, और आप सोर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जिफ टाइप की जो आपके पास पिक है वो आप दे रहे हैं, यहाँ पे इमेज दे रहे हैं आप इसको। सो दिस इज ए सेल्फ एंड नोड है कि पी इट सेल्फ ही, जहाँ पैराग्राफ है हमारा, ये सेल्फ एंड नोड है, जैसे ही इमेज अप्लाई होगी प्रोसेस एंड हो जाएगा। सो दिस इज सेल्फ एंड नोड एंड दिस इज ऑफ टाइप IMG इमेज। और इसके बाद सेल्फ एंड नोड BR है, लाइन ब्रेक होगी। फिर हम गए हैं यहाँ पे C, दिस इज अगेन अ मैसेज एंड C इज ऑफ टाइप कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद A है और एंकर टैग है, हैरफ है हमारे पास, morepix.html है, उसको हमने यहाँ पे लिखा नोड स्टार्ट A, और उसके बाद टेक्स्ट में हमने लिखा मोर पिक्चर्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और उसके बाद नोड एंड कर दिया है A के साथ। सो दिस इज अगेन अ मैसेज, सो टेक्स्ट इफ यू वुड लाइक दैट वन, एंड दिस इज द नोड एंड ऑफ P दैट वी हैव स्टार्ट हियर, सो दिस इज द एंड ऑफ पैराग्राफ। तो इस तरह से सिंपल वे में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप टोकनाइज भी कर सकते हैं, और एक टैग लैंग्वेज को भी आप क्या कर सकते हैं, उसके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की बेस पे आप उसका जो है वो टोकनाइज उसको कर सकते हैं, टोकन बना सकते हैं। ओके, ये बेसिक्स थी, ये आइडिया था लेक्सिकल एनालाइजर का कि उसमें स्कैनिंग क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, लेक्सीम्स क्या हैं, किस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एग्जांपल्स देखें, लेक्सिकल एरर्स कौन से हो सकते हैं, ये थ्रू आउट हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम क्विकली कुछ चीज़ें देखेंगे कि स्पेसिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स फॉर टोकन्स, के टोकन्स जो हैं वो बेसिकली जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए जो पैटर्न्स हमारे पास होंगे वो किस तरह से स्पेसिफिक कैटेगरी के हो सकते हैं या टाइप के हो सकते हैं। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स फॉर टोकन्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, जिस तरह अल्फाबेट है, स्ट्रिंग है, लैंग्वेज है, वर्ड है। फिर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, जिस तरह यूनियन, इंटरसेक्शन हो सकता है, यही ऑपरेशन लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। टर्म्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के पार्ट्स होते हैं, सब स्ट्रिंग है, और इसी तरह प्रीफिक्स है, मीन ये चीज़ें अभी हम देखते हैं इन डिटेल। रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम ओवरव्यू करेंगे, रेगुलर डेफिनेशंस हैं, और कुछ नोटेशनल शॉर्ट हैंड्स को भी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स फॉर टोकन्स, इसमें क्या है, अल्फाबेट। अब ये जो ऑटोमेटा थ्योरी है उसके अंदर इन डेप्थ आपने ये तमाम चीज़ों को डिस्कस भी किया होगा, वहाँ पे देखा भी होगा। हम इसको क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली अल्फाबेट वो स्टोर है जहां से हम सिंबल्स हमें मिलते हैं, हम सिंबल्स को गेट करते हैं। ओके, सो एन अल्फाबेट, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फाबेट, इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, सो इट मीन सिंबल्स आर कैरेक्टर्स, बोथ आर यूज्ड एज इंटरचेंजेबल टर्म्स। इसी तरह स्ट्रिंग है, जो अल्फाबेट के अंदर कैरेक्टर्स होंगे उनके कम्बिनेशन के साथ हम स्ट्रिंग बना पाएंगे। सो अ स्ट्रिंग S इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम अल्फाबेट। और इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। सो दिस इज एस मॉड, इट डिनोट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S, और इसी तरह दिस इज द सिंबल ऑफ एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन डिनोट्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास 0 होती है। ओके, लैंग्वेज कैसे बनती है, जो अल्फाबेट में से स्ट्रिंग बनी है, और वो स्ट्रिंग जो है अगर किसी पैटर्न को फॉलो करती हैं तो वो वर्ड्स बनेंगे, और वर्ड्स जो हैं वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। सो अ लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन जो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। सो अ लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सम फिक्स्ड अल्फाबेट सिग्मा, जो सिग्मा के ऊपर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आपने बनाई हैं, अब वो किसी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं तो बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। सो द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ली है, इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। एक लैंग्वेज हमने, ये लैंग्वेज है हमारी। सो द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, और कौन सी स्ट्रिंग इसमें शामिल है, कंसिस्टिंग ऑफ n टाइम जीरोज
फॉलोड बाय n टाइम वंस, कि जिसमें n टाइम 0 जो है पहले आएगा आपकी स्ट्रिंग में, किसी भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग में, और फॉलो उसके बाद n टाइम 1 आएगा, यानी जितनी दफा 0 आएगा उतनी दफा 1 आएगा। फॉर सम, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 और इट कैन बी मोर देन 0। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओवर अल्फाबेट में हमारे पास दो सिंबल है 0 1। तो अब इससे जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, 0 टाइम हमने यहाँ पे क्या रहे हैं कि n की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। इफ वी हैव n वैल्यू 0 देन इट मीन 0 टाइम 0, 0 टाइम 1, जब दोनों नहीं आएंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और अगर 0 जो है वो 1 टाइम आता है तो फिर 1 भी 1 टाइम आएगा। सो इट मीन द स्ट्रिंग विल बी 0 1। अगर 0 2 टाइम आता है और फिर 1 भी फॉलो करेगा उसको, 2 टाइम 1 आएगा। सो इट मीन वी हैव स्ट्रिंग 0 0 1 1 एंड सो ऑन। So basically this is an alphabet, okay, and these are the strings are basically that are generated by using this pattern, and basically the combination of specified string makes a language। तो इस तरह से ये different concepts हैं। अब इस string की length 0 है, इस string की length 2 है, इस string की length 4 है, इस string की length 6 है, तो इस तरह से हम string की length को भी देख सकते हैं। String operations, the concatenation of two strings x and y is denoted by xy, no doubt। concatenation is just हम कह सकते हैं multiplication type चीज है, लेकिन multiplication नहीं है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, टू डिफरेंट थिंग्स को आप पिक करते हैं और उनको एक साथ राइट करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक x है एक y है। जस्ट हमने x को प्लेस किया और उसके साथ हमने y को प्लेस कर दिया। सो नाउ बोथ ऑफ x एंड y नाउ इन आर एज अ कंकैटिनेशन प्रोसेस। सो एक्स वाई को हमने लिखा, अब ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये आफ्टर कंकैटिनेटेड जनरेट हुई है, जो कि x और y को राइट किया था यहाँ पे। The exponentiation of a string s is defined by s power 0 is equal to empty string, no doubt about that। ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर किसी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आप उसको empty string के साथ डिनोट करेंगे। s power I mean any number, and we can say that this is equal to s power I minus 1 and s for I greater than to 0। तो अब 0 वैल्यू जो i की है ये आप देख सकते हैं s पावर 0। अब i की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर, यानी 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। सो लेट्स से इफ वी प्लेस हियर 2, so s power 2 minus 1 so s power 1 मीन 1 टाइम s आप राइट करेंगे, तो 1 टाइम s यहाँ से आएगा और 1 टाइम s यहाँ से आएगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, ss, यानी कि 2 दफा आप s को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट मीन i की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे इसमें फॉर्मूले में, तो उससे आपको नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होकर मिलती जाएगी। एंड दिस इज अगेन अ की पॉइंट दैट s if concatenated with empty string or empty string is concatenated with any type of string, the result will not be affected and we will receive as a result the only string। तो empty string अगर concat होती है किसी string से, तो ये उसके result पे, उस string पे कोई इफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये वर्क करती है as a unity एज अ यूनिट। सो यूनिट मीन 1 है, सो आप इसको समझ लें कि एज अ 1 मल्टीप्लीकेशन यूज कर रही है। सो इट मीन देयर विल नो इफेक्ट ऑन द साइज और ऑन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको नजर भी नहीं आ रहा। ओके, अब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, जो यहाँ पे राइट की गई हैं, आपको नजर आ रही हैं। एक कंसेप्ट है प्रीफिक्स क्या होती है, सफिक्स क्या है, सब स्ट्रिंग क्या है, प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स एंड प्रॉपर सब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, और सब सीक्वेंस क्या होता है। ये विद एग्जांपल क्लैरिफाई की गई हैं और काफ़ी उम्मीद है कि ये आप खुद से कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रीफिक्स, व्हाट इज अ प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग, एस इज एनी स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 0 और मोर सिंबल्स फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एंड से आप 0 कैरेक्टर निकाल दें, 1 निकाल दें, 2 निकाल दें, 3 निकाल दें, वो प्रीफिक्स कंसिडर होगा। फॉर एग्जाम्पल BAN, बनाना एंड एम्प्टी स्ट्रिंग आर प्रीफिक्सेस ऑफ द वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग बनाना। तो
तो बनाना हमारे पास स्ट्रिंग है, जब आप इसका एक लेटर यहाँ से डिस्कार्ड करें तब भी ये उसकी रिमेनिंग स्ट्रिंग जो होगी वो प्रीफिक्स है। 2 लेटर डिस्कार्ड कर दें और जो स्टार्ट के 4 लेटर हैं वो हमारी प्रीफिक्स है हमारी स्ट्रिंग का। और इसी तरह अगर सब को रिमूव कर दें तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिसीव होगी, सो एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी द प्रीफिक्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो इस तरह से ये तमाम कंसेप्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं। सो प्रीफिक्स जो स्ट्रिंग के एंड से डिस्कार्ड कर रहे हैं, सफिक्स जो स्ट्रिंग के स्टार्ट से आप डिस्कार्ड करते हैं, सब स्ट्रिंग जो ऑफ अ स्ट्रिंग एस इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एनी प्रीफिक्स एंड एनी सफिक्स फ्रॉम एस। तो आप फ्रॉम स्टार्ट और फ्रॉम एंड कुछ भी अगर आप इसमें से क्रॉस कर दें या 0 क्रॉस कर दें मीन तो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स जो है वो आपकी जो है वो सब स्ट्रिंग होंगी। जिस तरह बनाना है तो इसमें अब आप एम्प्टी जो है वो भी सब स्ट्रिंग है कि आप सारे लेटर रिमूव कर दें, इसका मतलब आप स्टार्ट से या एंड से आपने सब रिमूव कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग आपको मिल रही है। सो एम्प्टी स्ट्रिंग विल फॉलो द सब स्ट्रिंग। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया, NaN को यहाँ पे गेट किया है, यानी कि राइट साइड से 1 कैरेक्टर डिस्कार्ड किया है, स्टार्ट से हमने यहाँ पे जो है वो 2 कैरेक्टर्स डिस्कार्ड किए। सो द रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज NaN। सो NaN इज सिंपली विल बी कंसीडर्ड एज दिस सब स्ट्रिंग। अगर स्टार्ट से कट ऑफ कर रहे हैं तो सफिक्स है, अगर एंड से स्ट्रिंग में से डिस्कार्ड कर रहे हैं लेटर्स को तो प्रीफिक्स है, अगर दोनों से कर रहे हैं तो ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है। The proper prefix, the proper suffix, the proper substring of a string S are those prefixes, suffixes and substrings respectively of S that are not empty or not equal to S itself. Simply. अब अगर एक हम यहाँ पे ले रहे हैं बनाना, अगर ये एग्जाम्पल है, अब इसमें empty जो रिजल्ट मिला है या मुकम्मल स्ट्रिंग मिली है, तो इस 2 स्ट्रिंग के अलावा जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी वो प्रॉपर प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स के पैटर्न पे है या सफिक्स के पैटर्न पे है तो प्रॉपर सफिक्स, या सब स्ट्रिंग के पैटर्न पे है तो प्रॉपर सब स्ट्रिंग कंसीडर होगी। यानी 2 स्ट्रिंग निकाल के बाकी तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रॉपर सफिक्स और प्रॉपर सब स्ट्रिंग कंसीडर होंगी। Subsequence of S is any string formed by deleting 0 or more not necessarily consecutive positions of S. For example, BAAN is a subsequence of banana. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि subsequence of S is any string formed by deleting 0 or more not necessarily consecutive position of S. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे B को रिटेन किया है, A को रिटेन किया है, N को डिस्कार्ड किया है, A को रिटेन किया है, A को रिटेन किया है, N को रिटेन किया है और A को डिस्कार्ड किया है। सो एक्चुअली इस पूरे में अब हम अगर विदाउट सीक्वेंस कैरेक्टर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कंसेप्ट जो है वो सब सीक्वेंस कहलाएगा। सो बेसिकली इस तरह सब सीक्वेंस हमारे पास जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग। लैंग्वेज ऑपरेशंस, if we have L and M, 2 different type of languages, then the union can be L union M, and the strings that will be produced in L union M will be S is a string such that S belongs to L or S belongs to M. तो जो स्ट्रिंग या तो सिर्फ L से बिलोंग करेगी या सिर्फ M से बिलोंग करेगी वही आपका यूनियन का पार्ट हो। इसी तरह कंकैटिनेशन है, L M है तो XY विल बी जनरेटेड, X बिलोंग्स टू L एंड Y बिलोंग्स टू M। तो X आपको L में से मिलेगा, Y आपको M में से मिलेगा। तो जब कोई भी स्ट्रिंग L और M से आप लेंगे, उनको कंकेट करेंगे तो वो आपकी कंकैटिनेशन प्रोसेस के बाद एक स्ट्रिंग बन जाएगी। एक्सपोनेंशिएशन L पावर 0, और इसमें हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल है, और इसमें L पावर I इज इक्वल टू L पावर I माइनस 1 और L हो सकता है। ये इस तरह की एग्जांपल अभी हमने स्ट्रिंग रिलेटेड भी देखी है। अगर आप गौर करें ये सेम वही एग्जांपल बनती है जो हमने यहाँ पे इसको मेजर किया है। सो S पावर 0 के लिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग गेट की है, और फॉर मोर देन 0 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हमने S पावर I और इसका फॉर्मूला लिखा था S पावर I माइनस 1 और S। तो सेम आइडिया हमारे पास जब ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दिस विल बिलोंग्स टू द मोर स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ मोर देन 1 कैरेक्टर। क्लीन क्लियर और पॉजिटिव क्लियर, नो डाउट अबाउट दैट, ये हम जानते हैं कि
क्लीन स्टार क्लियर का मतलब है ऑफ लेंथ 0 और मोर देन 0, और पॉजिटिव क्लियर का मतलब है ऑफ लेंथ 1 और मोर देन 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यूनियन करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स को, जो इसमें ऑफ लेंथ 0 अप टू इन्फिनिटी है, और इसमें प्लस क्लियर में फ्रॉम लेंथ 1 टू इन्फिनिटी। सो ये तमाम कंसेप्ट जो हैं ये रिलेटेड टू ऑटोमेटा हैं, ये वहाँ पे ऑलरेडी आप जो है वो इन डिटेल देख चुके होंगे। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशंस। बेसिक सिंबल्स हैं। एम्प्टी रेगुलर एक्सप्रेशन में एम्प्टी लैंग्वेज को डिनोट कर सकता है। ए अगर बिलोंग करता है एम्प्टी अल्फाबेट से, दिस इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन अगेन डिनोटिंग ओनली वन स्ट्रिंग इन लैंग्वेज, दैट इज ए। If R and S are regular expressions denoting languages L of R and M of S respectively, then R or S is a regular expression denoting L of R union M of S। तो हमने क्या किया है, एक लैंग्वेज है उससे जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होता है, जो वैल्यू जो स्ट्रिंग जनरेट होती है वो R रिप्रेजेंटेड है और दूसरी से S रिप्रेजेंटेड है। सो R हो या S हो, इससे जो चीज मिलेगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन आप उसको ऐसे राइट कर सकते हैं, L of R यूनियन M of S, यानी या तो R मिलेगा या आपको S मिलेगा। ये भी हम प्रीवियस पेज पे देख के भी आए। और जब हम इनको कनकेट करेंगे, दिस इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डिनोट्स L of R into M of S। R star is a regular expression and it denotes L of R star। R simple is a regular expression and it denotes L of R। So a language defined by a regular expression is called a regular set। जो language आप regular expression define करती है वो basically एक regular set होता है, यानी regular expression से जो language बनती है वो combinedly हम उसको regular set का नाम देते हैं। ये तमाम concepts जो हैं ये ऑटोमेटा से related हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये तमाम कंसेप्ट जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर होंगे। ओके, सो दीज आर द रेगुलर डेफिनेशंस, द नेमिंग कन्वेंशंस फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। जिस तरह हमने कहा है कि आर नोटेट करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को, लेट्स से D1 एंड दिस इज द डेफिनेशन 1 and it representing R1, definition 2 representing R2 and so on to Dn representing Rn, where Ri is a regular expression over alphabet and it is union with D1, D2 and so on to Di minus 1। ये आइडिया मोर मेच्योर होगा जब हम रेगुलर डेफिनेशंस को यूज करेंगे, इन डिटेल आगे हम यूज करेंगे तो ये आइडिया आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। सो ईच DJ और DJ मीन जो आपका डेफिनेशन है रेगुलर इन Ri जो कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग करती है, इज टेक्सचुअली सब्स्टिट्यूटेड इन Ri। वो बेसिकली हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं कि कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन टर्म्स को हम एज अ डेफिनेशन यूज करेंगे तो वहां पे हम इसको रेगुलर डेफिनेशन का नाम देंगे। एंड दिस इज अगेन द रेगुलर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इसको हमने यहाँ पे लिखा है, लेटर हमारे पास एक रेगुलर डेफिनेशन है और उसके अंदर जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो आप कैपिटल A, कैपिटल B एंड सो ऑन टू कैपिटल Z को पिक कर सकते हैं लेटर्स में, या स्मॉल a, स्मॉल b एंड सो ऑन टू स्मॉल z को पिक कर सकते हैं। इसी तरह डिजिट हमारे पास जो है वो रेगुलर डेफिनेशंस में आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट पिक कर सकते हैं। और आईडी है, आईडी आप जानते हैं आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब है कि आप इसका रूल क्या है कि कोई लेटर होगा और उसके बाद लेटर या डिजिट का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 और मोर टाइम। तो अब अगर आपको डिजिट्स रिक्वायर्ड है, मीन 15 जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास रूल है, डिजिट्स 1 लेंथ का है तो डिजिट प्रोड्यूस करेगा, 1 से मोर लेंथ का है तो डिजिट से आपको मिलेगा डिजिट डिजिट्स। तो एक डिजिट यहां से प्रोड्यूस होगा और फिर डिजिट्स जो हैं वो फर्दर नॉन टर्मिनल है, उसको अगेन आप उससे डिजिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ये देखेंगे, हमारे पास एग्जांपल्स हैं आएंगी ऐसी कि जिनमें हम मोर एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने इन तमाम कंसेप्ट्स को। नोटेशनल शॉर्ट हैंड्स, अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ये चीजें देख चुके हैं। आर पावर प्लस को आप आर स्टार भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्टार अगर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करेगा तो जो एम्प्टी स्ट्रिंग आर के साथ कनकेट होगी तो एटलीस्ट आपको 1 टाइम आर मिलेगा। सो इट मीन आर प्लस के अंदर जो मिनिमम लेंथ आर की हो सकती है वो 1 हो सकती है। सो आर क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये इक्वल है आर या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे की है। एंड दिस इज ए यूनरी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर।
द क्वेश्चन मार्क क्या है, यूनरी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर एंड इट मीन 0 और मोर अकरेंसेस। तो हमने यहाँ पे 0 और मोर के लिए और सिंपली यहाँ पे राइट किया। A to Z एज अ रेगुलर डेफिनेशन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट हैंड हम बता रहे हैं कि A और B और C, बजाय इसके हम लिखें कि A चूज कर लें, B चूज कर लें, C चूज कर लें और Z चूज कर लें, हम उसको कम्युलेटिवली लिख सकते हैं A to Z ओवरऑल। इसी तरह डिजिट जो है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में 0 to 9 लिख देंगे, तो इसका मतलब है कोई भी डिजिट जो 0 से 9 की रेंज के अंदर आता है। नम में डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर आ सकते हैं। नम के अंदर इंटीजर भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं डिजिट है पावर प्लस है, इसका मतलब है अगर 1 लेंथ का डिजिट है तो यहीं से पिक हो जाएगा, मोर देन 1 लेंथ का है तो पावर प्लस है, तो आप यहाँ से वो डिजिट गेट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर पॉइंट वाला है तो डिजिट यहाँ से मिलेगा, एनी लेंथ का डिजिट, लेट्स से 25.22 है तो 25 यहाँ से गेट करेंगे, पॉइंट यहाँ से मिलेगा और 22 अगेन डिजिट प्लस आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। इसी तरह अगर आप कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू गेट करेंगे, सो डिजिट डॉट सम वैल्यू एक्सपोनेंशियल, उसमें भी प्लस या माइनस की चॉइस और फिर कोई डिजिट यहाँ से आप उसमें पिक कर सकते हैं। अगेन इस पे एग्जांपल्स आगे आएंगी, हम उनको डिस्कस करेंगे, इसलिए हम जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि इन चीज़ों को हमने फर्दर आगे डिस्कस करना है। ओके, and this is the end of our chapter number 9. So I think so that you have the clear idea after taking this lecture about the lexical analysis. What is lexical analysis? What is the reason that we use the lexical analyzer as the separate phase? What are the lexical errors? What is the concept of token, lexeme and patterns? And after that some topics we have studied related to notational shorthands, regular expression, regular languages, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक इसी की कंटिन्यूएशन करेंगे और तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।